السلام علیکم دوستو، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ حسب معمول آج آپ کے لیے ایک ایسی حیرت انگیز اور انتہائی دلچسپ ناول لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت بھی ایسے چند نابغہ روزگار شخصیات، رائٹر، مصنف موجود ہیں جو کہ ہندوستان کی تقسیم کے المیے کے حوالے سے جو ایک خونی داستان یا جسے ہم خون چکا داستان کہتے ہیں، ان حساس موضوعات پر آج بھی ان کا قلم رواں دواں ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے ملک کے معروف مصنف، ناول نگار، شاعر اور ہمہ جہت شخصیت جناب سہیل پرواز صاحب کی۔ اور سہیل پرواز صاحب کا اس وقت جو نیا ناول منصہ شہود پر آیا ہے، اس کا نام ہے امرتسر کی بلو۔ دوستو، برے صغیر کی تاریخ میں تقسیم کا المیہ ایک ایسا زخم ہے جو وقت گزرنے کے باوجود اپنی شدت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لاکھوں انسانوں کی ہجرت، خونی فسادات اور انسانی رشتوں کی پامالی ایسی داستانیں ہیں جو آج بھی دہرائی جاتی ہیں، لیکن شاید ان پر جتنا بھی لکھا جائے وہ حق ادا نہ ہو سکے۔ سہیل پرواز کا ناول اسی پس منظر میں تخلیق کیا گیا ہے، جس میں تاریخ کے چند انچھوئے زاویوں کو سامنے لایا گیا ہے جو وقت کے ساتھ مسخ ہو چکے تھے۔ A section of Hindus also campaigned for an ethnic Hindu state. Divisions between the two groups deepened, estimated 1 million people, and raping and abducting up to 100,000 women. ناول کا آغاز کرداروں کے تعارف سے ہوتا ہے، جہاں ہر کردار اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ بلو اس کہانی کی مرکزی شخصیت ہے، لیکن ابتدا میں قاری پر واضح نہیں ہوتا کہ کہانی کا دھارا کس سمت جائے گا۔ تاہم کہانی جیسے ہی آگے بڑھتی ہے، مصنف کی گہری تحقیق اور بیانیے کی مہارت قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہانی کسی تخیل کا نتیجہ نہیں، بلکہ مصنف کے دل میں برسوں پروان چڑھنے والا ایک سچ ہے جو بالآخر کرتاس پر اتر آیا ہے۔ بلقیس عرف بلو کا سفر ایک معصوم بچی کی کہانی ہے جو تقسیم کے ہنگامے میں اپنے قافلے سے بچھڑ کر سکھوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ بلو کا بلجیت کور بننا محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اس کی اپنی ماں کے جبر کا گہرا زخم بھی ہے، جس نے اسے ناپسندیدگی اور مار پیٹ سے اس حد تک دکھی کیا کہ اس نے ایک نئے مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلو کی زندگی کا ہر موڑ دکھ اور آزمائش سے بھرپور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی رویوں کی پیچیدگیاں بھی کہانی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مصنف جناب سہیل پرواز صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اچھے اور برے لوگ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہر سماج اور ہر عقیدے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ناول صرف ایک فرد کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے عہد کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے، جہاں شناخت، مذہب اور خاندانی رشتے تاریخ کے جبر کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں۔
नावल के दीगर किरदार भी कहानी को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा करते हैं। नसीम, इल्ताफ और राहुल की कहानी भी इसी तकसीम की तस्वीर कशी करती है, जहां राहुल अपने माँ बाप के वादे को निभाने के लिए दिल्ली से लाहौर आता है ताकि अपनी दीदी की अमानत उन्हें वापस लौटा सके। ऐसे कई वाकयात तारीख में दर्ज हैं, जहां इंसानियत ने नफरत की दीवारों को फलांग कर रिश्तों को दोबारा जोड़ा। कहानी के आखिरी अब्वाब में बिल्लो की बेटी प्रीति की इस्लाम कबूल करने और आयशा बनने का मंजर इंतहाई जज्बाती है, जो कारी को एक नई दुनिया में ले जाती है। नावल के इख्तिताम पर बिल्लो का अपनी असल पहचान की तरफ लौट आना एक ऐसा फैसला है जो उसके सारी जिंदगी के सफर को मुकम्मल करता है। दोस्तों, सुहेल परवाज साहब की ये किताब अमृतसर की बिल्लो इस वक्त पाकिस्तानी अदब में बहुत इसकी पजीराई इसे मिल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक इंतहाई अहम मौजू पर, और मौजू भी वो जिसको हमारे लिखने वालों ने अपने अपने अंदाज से लिखा, लेकिन उसमें जो तारीखी हकाइक हैं उनको मस्क किया गया और पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि तकसीम हिंदुस्तान के वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो कौन से समाज के लोग थे जिन्होंने अपने अपने मफादात की खातिर एक दूसरे पर जुल्म और सितम किए। अगर हम मुसलमानों की तारीख को देखें तो पता चलता है कि हमें हिंदुओं और सिखों ने शदीद नुकसानात पहुंचाए, और इसी तरह अगर हम हिंदुओं और सिखों की जो दास्तान खून चुका है वो पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि मुसलमानों ने उन पर बहुत जुल्म और सितम ढाए। लेकिन सुहेल परवाज साहब ने बहुत ही गैर जानिबदाराना अंदाज में एक तजिया पेश किया और ये साबित किया कि तकसीम हिंदुस्तान के वक्त जिन जिन लोगों पर मजालिम ढाए गए उनमें से अक्सरियत खुद भी जालिम थे। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अगर एक तरफ सिखों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए तो मुसलमानों ने भी सिखों और हिंदुओं और दूसरी कम्युनिटीज पर जुल्म और सितम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो मुसन्निफ सुहेल परवाज साहब की तहरीर की जो एक रवानी है, तारीखी तहकीक है और इंसानी नफ्सियात की गहरी समझ इस नावल को मुनफरिद बनाती है। कहानी के कुछ हिस्से पेचीदा महसूस हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कारी एक गैर मरी रिश्ते में जकड़ता चला जाता है। तकसीम की तारीख को फिक्शन के जरिए बयान करने की ये एक काबिल कदर काविश है, और जनाब सुहेल परवाज साहब चूँकि हमारे मुल्क के एक बड़े लिखने वालों में आपका शुमार होता है, इससे कबल भी आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ने वालों से दाद वसूल कर चुकी हैं और आपका अदब में एक बड़ा नाम है। आपका ताल्लुक चूँकि पाक फौज से रहा है और पाक फौज में बहुत बड़े बड़े नामवर नाबगैर रोजगार शख्सियात जिन्होंने उर्दू अदब में अनमिट नकूश छोड़े एक तवील फहरिस्त है, जिन्होंने उर्दू इसनाफ अदब में नसर में लिखा, शायरी में लिखा, मज़ाहिया शायरी में लिखा, सफरनामे भी लिखे, इंशाइया निगार भी उनमें बहुत से रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनाब सुहेल परवाज साहब फौज के वो पहले आप उन्हें नावल निगार कह सकते हैं जिन्होंने बकायदा नावल लिखे, और इस किताब को अक्स पब्लिकेशन ने शाया किया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इसकी तबात की। इस किताब का जो आप टाइटल देख रहे हैं ये खुद सुहेल परवाज साहब का अपना तख्लीक करदा है। अक्स पब्लिकेशन ने बहुत खूबसूरती से इस किताब को पाए तकमील तक पहुंचाया। किताब के बैक फ्लैग पर जनाब सुहेल परवाज का अपना भी भरपूर अंदाज से तारुफ है, और इस किताब का इंतसाब आपने चढ़ते और उतरते पंजाब की लाखों बेटियों के नाम किया है जो पांचों पानियों में मिले
जहर की भेंट चढ़ गईं। पेश लफ्ज में सोहेल परवाज साहब लिखते हैं कि अमृता प्रीतम अपना दुख बयान कर गई कि अज आखा वारिस शाह नूं किथों कबरां विचों बोल ते अज इश्क किताब दा कोई अगला वर्का फोल। लिखने वालों ने बैन भी लिखे और नोहे भी कहे, किसी ने ज्यादा और किसी ने कम, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हिजरत का दुख अधूरा रहा। कम अज कम पंजाब की हद तक तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि लाशों से अटे बेले दरियाओं में मिला जहर और लहू से टपकती कब्रें आज भी उस दुख की दास्तां सिसक सिसक कर बयान कर रही है। दिल्ली में मेरे दोस्त काजी जिक्रिया साहब मेट्रो लिंक पब्लिशर वाले से एक रोज बात हुई तो कहने लगे, रोए तुसी भी बहुत हो तो रोए असी भी बहुत आ। मैंने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन हकीकत है कि दोनों बहुत रोए, मगर हम ज्यादा रोए। ताहम मकसद बहस नहीं। भारत में पंजाब के मौजू पर बहुत लिखा गया और ये उनका हक था। इधर पाकिस्तान में भी बिलवास्ता तौर पर तो बेतहाशा लिखा गया, लेकिन बराह रास्त इस अलमिया को वो अहमियत नहीं दी गई जिसका ये सजावार था। नस्ल नौ को जो तकसीम हिंद की खून चका दास्तान और खसूसन अलमिया पंजाब की तफसील से बेखबर होती जा रही है, अपने ताई मैंने उन्हें इसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इस तारीखी सानिये में दीगर कौमों ने कोई कुर्बानी नहीं दी। क्या हम तकसीम बंगाल की कुर्बानियों को किसी सूरत भी भुलाने की जुर्रत कर सकते हैं? लेकिन ये भी एक अटल हकीकत है कि इस खूनी आंधी की लपेट में चढ़ता और उतरता पंजाब सबसे ज्यादा आया। अल्लाह से दुआ है कि वो अपना करम करे और हमें ऐसा कोई सानिया दोबारा ना देखना पड़े। सोहेल परवाज 1 अक्टूबर 2024। और ये नावल अमृतसर की बिल्लो सोहेल परवाज साहब का वो नावल है जो न सिर्फ माजी की तलखियों से पर्दा उठाती है बल्कि कारी को सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमने तारीख से क्या सीखा।